Shalom and blessing to your church in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह के महान नाम से आपको आशीर्वाद और शांति। It is wonderful to hear that our church is doing the study on the book of Revelation. ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी कलीसिया प्रकाशित वाक्य की किताब पर पढ़ाई कर रही है। It is the only book in the Bible, 66 book, which blesses the one who listens and the one who hears. ये केवल एक ही किताब है 67 किताबों में से जो सुनने वाले को और पढ़ने वाले को आशीर्वाद देने का वादा करती है। Because and also blessed is the one who keeps the prophecy of this book because the time is at hand. और जो भी इस किताब में भविष्यवाणी दी है उसको रखता है, उसके ऊपर भी आशीर्वाद है क्योंकि समय निकट है। In fact, along with the book of Revelation, I would also encourage you all to make a study of the book of Daniel. और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप प्रकाशित वाक्य की किताब के साथ दानियल की किताब को भी पढ़ें। Especially chapters 7 to 12, because many hidden mysteries are mentioned. और 7 से 12 अध्याय भी मैं आपको बोलता हूँ पढ़ने के लिए दानियल की किताब का, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी बातें लिखी गई हैं। Daniel is the first book where the mysteries were revealed, but it is sealed. ये पहली किताब है, दानियल ऐसी पहली किताब है जिसमें जो राज की बातें हैं वो लिखी गई है, पर ये किताब के ऊपर मोहर लगी गई है। Whereas Revelation is a book, it is unveiled or apocalypse. परंतु प्रकाशित वाक्य ऐसी किताब है जिसमें सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से दिखाया गया है, पर्दा हटाया गया है। And if you are really very keen to know what will happen in the last days, my humble request to you is, अगर आपको बहुत ही उत्सुकता है जानने के लिए कि क्या होने वाले अंत के दिनों में, तो मेरी आपसे ये नम्र विनंती है कि you make a study of Matthew chapter 23 and 24. I repeat, Matthew chapter 23 and 24 and 1 Corinthians chapter 15. तो मैं आपसे कहता हूँ कि मत्ती का 23 और 24 अध्याय और 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय का आप इसके बारे में आप पढ़िए। These three chapters bring a tremendous balance between the book of Daniel and the book of Revelation. ये जो 3 अध्याय है वो दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य की किताब के बीच में एक संतुलन लाती है। Our topic today is going to be on the word called rapture. आज हमारा जो शीर्षक है वो स्वर्गरोहण इस बात पर है। And it is so very confirming. और ये बहुत ही पक्की, ये बात ऐसी तरीके से पक्की हो गई। Because Gloria thought that Sauter pastor is going to preach the word and she had already prepared a song of rapture. She did not know that I am going to share the word. कि मुझे ऐसा मैंने स्वर्गरोहण के ऊपर गाने लिए आज, और मुझे लगा कि आज पास्टर सॉटर जो है वो प्रचार करने वाले हैं। So when I requested her, would you interpret for me? So she asked me, what is the topic? I said rapture. She was very surprised. तो जब मैंने मेरे पिताजी से पूछा कि आप कौन सा शीर्षक लेने वाले हैं, तो जब उन्होंने कहा कि वो प्रकाशित स्वर्गरोहण के बारे में बोलने वाले, तो मैं काफी अचंभित हो गई। So God has confirmed this with His prophets. तो इस तरीके से ये बात जो है वो पक्की हो गई। So today we'll see the word rapture in the Jewish angle and the biblical angle. तो आज ये जो शब्द है स्वर्गरोहण, ये जो बात है वो हम यहूदी के तरीके से और पवित्र शास्त्र के तरीके से देखेंगे। When the word rapture comes, it brings wild ideas to our mind. How can people caught up in the air and be like a Superman? तो जब ये शब्द आता है स्वर्गरोहण, हमारे दिमाग में काफी अद्भुत और अलग तरीके के ख्याल आते हैं, जैसे कि हम लोग कैसे सुपरमैन की तरह हवे में है। But the Bible says that believers will be caught up in the air and the world will go on, but now the world will be fully shaken after the day of rapture. पर पवित्र शास्त्र ये कहती है कि जो विश्वासी है वो हवे में उठा लिए जाएंगे, और जो दुनिया है वो चलती रहेगी, पर दुनिया पूरी तरीके से हिल जाएगी। Now the word rapture, if you see somebody asks, where is the word rapture in the Bible? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ये जो शब्द है स्वर्गरोहण, ये पवित्र शास्त्र की किताब में कहाँ पर है? It is there in the Latin Vulcan Bible. I repeat, in the Latin Vulcan Bible, it says rapio mir.
तो ये जो शब्द है स्वर्गरोहण, वो लतीन वल्कन बाइबल में, लतीन वल्कन पवित्र शास्त्र में लिखा है रपियोमीर, ये शब्द से लिखा है। Rapio means to be caught up. रपियो ये शब्द का मतलब है उठा लिए जाना, And the Greek it is said hapazo. और यूनानी भाषा में उसे बोलते हपाdzo। Hallelujah. So today we'll see this word in two parts today. आज हम ये जो वचन है वो दो भाग में देखेंगे। The blessed hope of rapture. तो जो आशीषित आशा है स्वर्गरोहण की, The first part is promises. The second part is the process. तो पहले भाग में है वादे और दूसरे भाग में है जो तरीका। The more you study a Bible and ask the sweet Holy Spirit lead and guide you, you will enjoy understanding it. It is very, very important on God's program, rapture. तो अगर आप पवित्र आत्मा से पूछोगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बात जानने के लिए जो स्वर्गरोहण है, क्योंकि ये बहुत ही महत्व का मुद्दा है परमेश्वर के कार्यक्रम में। So let's turn to our Bible to John 14. तो अभी हम अपना पवित्र शास्त्र यूहन्ना के 14 अध्याय में खोलेंगे। We will keep Matthew 26 at the background because they are parallel chapters. और हम मत्ती का जो 26 अध्याय है वो हमारे मन के पीछे रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इन दोनों जो इन दोनों जो अध्याय है उसमें बहुत ही चीजें सामान्य है। Now it is the Last Supper. अब ये जो आखिरी जो भोजन था वो है, Jesus had finished breaking the bread and he dipped the bread in the wine. तो यीशु ने पाव खा लिया और उसने फिर पाव को तोड़ के उसने जो दाखरस है उसमें डुबाया And he gave to Judas. और यहूदा को दे दिया। और ये घोषणा and he declared that Judas will betray him. और उसने ये बात की घोषणा की कि जो यहूदा है वो उसे धोखा देगा। Now actually from here after the Last Supper they were about to go to Gethsemane and then the accusation and the crucifixion was there. तो अब इस बात के बाद वो गेत्सेमनी जाने वाले थे, उसके बाद जो दोष लगाया जाना और उसके बाद सूली पर लटकाया जाना, ये सब बातें होने वाली थी। But as soon as Jesus gave the bread dipped in the wine to Judas, Judas left from there immediately to do his plan. पर जैसे ही यीशु मसीह ने जो रोटी का टुकड़ा है वो दाखरस में डुबो के यहूदा को दिया, यहूदा तुरंत उस जगह से निकल गया अपनी योजना को सफल करने के लिए। Now the important thing is that they wanted to finish the crucifixion of Jesus before the feast of Passover. और अभी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग थे उन्हें परमेश्वर यीशु मसीह को जो क्रूस पर लटकाने का जो कार्यक्रम है वो पर्व के पहले खत्म करना था। They don't want to keep anything after the feast of Passover. तो जो पर्व का जो जश्न है उसके बाद के लिए कोई भी बात उन्हें नहीं रखनी थी। So Judas is gone, 11 faithful disciples remain over there. तो अब यहूदा चला गया, अब 11 जो विश्वसनीय चेले थे वो वहाँ रह गए हैं। Now the scholars of the Word of God says that Jesus was controlling the plan, time and situation under his total control. अब जो परमेश्वर के जो बात जानने वाले जो लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, वो ये बात कहते हैं कि जो समय और जो भी घटनाएं घट रही थी वो सारी घटनाएं परमेश्वर यीशु मसीह नियंत्रण कर रहा था उन पर। And Jesus says in John 14:1 and 2, "Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions, and if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you." तो अब यीशु मसीह कहता है यूहन्ना के 14 अध्याय 1 से 5 वचन में, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। So this is a very fantastic promise that Jesus told his disciple, and here first time he is equaling himself to God.
और ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा वादा है जो यीशु मसीह हमें देते हैं। और ये पहली बार है जहां यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर पिता के समान बोलते हैं। Now, before that, 4 days ago, Jesus rode in a donkey. You can read that in Zechariah 9 verse 9. For the first time, he accepted his kingship and lordship in a very humble and meek manner. We'll read in Hindi. तो अब जो इसके 4 दिन पहले ही यीशु मसीह ने गधे की सवारी की और उन्हें बहुत ही नम्र रीति से उन्होंने अपने जो प्रभुता और जो राजता है वो अपनाई। और अब हम ये जकारिया के 9 अध्याय 9 वचन में पढ़ेंगे। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। Now, this was told by Zechariah thousands of years earlier. तो ये जो बात है जकरिया ने बहुत ही हजारों सालों पहले कही थी। And 5 centuries ago, exactly on the same day, Gabriel angel had told to the prophet, I think, for Daniel and Isaiah. और यही दिन पर 5000 साल पहले 500 साल पहले माफ कीजिए, गब्रियल स्वर्गदूत ने यही बात दानियल या यशाया को कही थी। ये बात exactly the day and the time. ये बराबर यही समय और यही दिन पर। Now before this they wanted to make him king many times, but he slipped away from that place. और इसके पहले भी वे यीशु को बहुत बार राजा बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर यीशु उन्हें वहां से निकल जाता था। But now he accepted with all humility and gentleness. पर इस बार यीशु ने ये बात को बहुत ही नम्र, बहुत ही दीन तरीके से ये बात को अपनाया। Also ahead he tells it is very important for him to go, where unless until he will not go, the Holy Spirit will not come. और वो ये भी कहते हैं इसके बाद कि यीशु मसीह कहते हैं कि उसको जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब यीशु मसीह जाएंगे तब ही पवित्र आत्मा जो है वो आएगी धरती पर। And days to come it will be reversal. अब जो थोड़े दिनों अभी जो आने वाले दिन है उसमें ये जो बात है वो पलट जाएगी। The Holy Spirit will take the church to the heaven, and after 7 years Jesus will come with his bride to earth. अब ये जो बात ऐसी तरीके से पलट जाएगी कि पवित्र आत्मा कलीसिया को लेकर स्वर्ग में चले जाएंगे और 7 साल के बाद यीशु मसीह अपनी दुल्हन जो कलीसिया है उसे लेकर वापस धरती पर आएंगे। And Jesus emphasized in chapter 14, 15, 16 of John of the Holy Spirit, and he'll guide you, teach you, show you all the truth and glorify me. तो ये जो बात है यीशु मसीह ने बहुत बार यूहन्ना के 14, 15, 16 अध्याय में बहुत बार इस पे ध्यान दिया, ये बात को बार बार दोहराई कि जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हें अगुवाई करेगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम्हें सारी बातें सिखाएगी। So he gave great importance to the sweet Holy Spirit. तो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को बहुत ही महत्व दिया। So we should also do that same, beloved. तो हमने भी यही बात करनी चाहिए। Now, beloved, we all know that God created the universe in 6 days. तो हम सब ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह ने 6 दिन में इस पूरे स्वर्ग, पूरे दुनिया की रचना की। And we only know it after the curse. पर हम इस दुनिया को केवल वो जो श्राप है उसी के बाद जानते हैं। Yet it is so wonderful and breathtaking. फिर भी ये दुनिया हमें कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत लगती है। So how much more it will be when we go to heaven, beloved. तो ये कितनी और खूबसूरत होगी जब हम स्वर्ग में जाएंगे। We have only heard like the golden streets and the golden lights. तो ये बात हमने केवल सुनी है कि जो सोने के रास्ते और सोने की जो रोशनी और But now the Lord is saying, in my Father's house are mansions. पर अब यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे महल है। Mansion made by God Almighty, the Father and the Son, the Holy Spirit, the creator and maker of the stars, the sky, the constellation. He is going to make mansions for you and me.
तो ये जो महल है वो पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह जिन्होंने स्वर्ग पृथ्वी की रचना की, वे हमारे लिए ये महल बनाने वाले हैं. Just whatever you want, whatever is your choice, your taste, it will be exactly like that, beloved. ये जो महल है वो हमारे पसंद, हमारी जो भी पसंद नापसंद और जो भी हमें अच्छा लगता है उस तरीके से, उस प्रकार से वो बातों की ध्यान रख के बनाए जाएंगे. 2 Corinthians says, 2 Corinthians, what eyes have not seen, what mind has not perceived, what is not come in human imagine, that is what God is prepared for them, those whom He love. तो जो 2 कोरिन्थियों में ये जो बात कही है, जो हमने कभी सोचा नहीं है, जो हमारी आंखों ने कभी देखा नहीं है और जो माइंड इज हार्ट इज नॉट कल्पना भी, हाँ, जो हमारे दिल ने कभी कल्पना भी नहीं की, ऐसी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है. Now we'll come to John 14 verse 3. अब हम यूहन्ना के 14 अध्याय 3 वचन में आएंगे. And he says, if I go and prepare a place for you, और इसमें कहता है कि अगर मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक जगह बनाता हूँ, I will come again to receive you मैं वापस आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए to myself, that where I am there you may be also. मेरे पास, कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो. So you see the significant word over here is you. तो आप देख सकते हैं कि बार बार ये जो शब्द है आप, इस पे बहुत ही महत्व दिया गया है. Jesus emphasized on his disciples that you will be there with me. यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम मेरे साथ वहाँ पर रहोगे. It means he is telling his bride that you will be there with me, my bride. My bride. We are the sons of God, the bride of Christ. You will be there with me. तो इसका मतलब ये है जो यीशु मसीह अपने दुल्हन से कह रहे कि तुम मेरी दुल्हन, तुम मेरे साथ रहोगे. ये जो कलीसिया है वो मेरे साथ रहेगी. In other words, Lord Jesus is saying the bridegroom cannot be happy in heaven without his bride. दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि जो दूल्हा है वो अपनी दुल्हन के बगैर खुश नहीं रह सकता, जो कलीसिया है. Because the Father wants to see the bride of his son Jesus. क्योंकि जो पिता परमेश्वर है वो अपने बेटे जो यीशु मसीह है उसकी दुल्हन को देखना चाहता है. And this is what I believe is said in John 17:20. और ये जो बात है यूहन्ना के 17 अध्याय 21 वचन में कही गई है. That they all may be one. कि वो सब एक बने. As you Father are in me. जैसे तुम पिता मेरे में हो, I in you. मैं तुझ में हूँ. That they also may be one in us. और वैसे ही वे हमारे अंदर एक हो जाए. So this oneness will be complete on that day, beloved, of John 17:21. तो ये जो एकता है वो उस दिन पूरी हो जाएगी जो यूहन्ना के 17 अध्याय 21 वचन में कही गई है. Now, beloved, this rapture process is an ancient Jewish marriage style. तो प्रियो, ये जो स्वर्गरोहण का जो प्रक्रिया है वो जो यहूदी है उनके प्राचीन शादी के रीति रिवाज के अनुसार है. It is called Ketubah or marriage commitment and covenant. इसे कहते हैं कतुबा या शादी का जो शादी का वाचन करार. You'll find in Matthew 1, Malachi chapter 2, verse 14 to 16. ये आपको मलाकी के कौन सा है? 2:14 से 16. मलाकी के दूसरे अध्याय 14 से 16 वचन में दिखाया गया है. Okay. So in this thing, the bridegroom goes to the bride place and he pays the moras, the price for the bride. तो इस जो तरीका, जो प्रक्रिया है उसमें जो दूल्हा है वो दुल्हन के घर पे जाता है और दुल्हन के लिए जो मोहरे है, जो कीमत है वो चुकाता है. It's a dowry, beloved. वो दहेज के रूप में चुकाता है. And he gives her a gown and a ring. और उसे वो शादी के वस्त्र और अंगूठी देता है. Exactly like a Lord Jesus paying the price for his bride by his precious blood. वही रीति से जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए, जो उसकी दुल्हन है कलीसिया, उसके लिए कीमत चुकाई अपने खून से, लहू से. 1 Peter 1:18-19. 1 पतरस 1 अध्याय 18 और 19 वचन. Then he gives her a gown. और फिर उसे वो एक शादी के वस्त्र देता है. And 2 Corinthians 5:21 says that Jesus has given us the robes of righteousness to us.
और 2 कुरिन्थियों का 2 कुरिन्थियों 5:21. 2 कुरिन्थियों का 5:21 अध्याय में 5वें अध्याय 21 वचन में कहता है कि यीशु मसीह जो है हमें धार्मिकता के वस्त्र देता है. And the ring denotes exactly Ephesians 1:13 says, He has sealed us with the seal of the Holy Spirit. और जो अंगूठी है वो ये बात को दर्शाती है कि यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा के मोहर लगाई गई है. Hallelujah. हालेलुया. We can go on and on, beloved. हम ये बात के बारे में बोलते जा सकते We are हैं. just making it short. मैं ये बहुत ही संक्षेप में कह रहा हूँ. Just as Joseph and Mary were espoused, and they were about to get married afterwards. जैसे ही जिस तरीके से यूसुफ और मरियम की मंगनी हुई थी और उनकी शादी जो है वो बाद में होने वाली थी. So here the groom goes back to his father to prepare the extra room for the bride after making the commitment to the bride. तो अब जो है जो दूल्हा जो है वो वापस जाता है अपने पिता के घर पे अपनी दुल्हन के लिए जो एक कमरा तैयार करने के लिए ये वाचा बनाने के बाद. He made a commitment to his bride and everything, and now he's going to his father's house to prepare for the day of the marriage. तो अब उसने दुल्हन के साथ जो है वो वाचा बांध लिया है और अभी वो वापस अपने घर पे जा रहा है अपनी दुल्हन के लिए जगह तैयार करने के लिए शादी के दिन के The लिए. bride also meantime prepares herself for the great day which can happen any time she does not know. अब जो दुल्हन है वो भी खुद को तैयार करती है उस महान दिन के लिए और वो ये नहीं जानती है कि कौन से समय पे वो दिन आएगा. She has kept herself set apart. She belongs only to him. अब वो जो दुल्हन है वो अपने आप को अलग रखती है क्योंकि वो जानती है कि वो सिर्फ अपने दूल्हे के लिए है. The groom can come any time without information or anyone's knowledge. तो जो दूल्हा है वो कुछ भी बताए बगैर कोई भी किसी को सूचित किए बगैर किसी भी वक्त पर आ सकता है. Now suddenly they proceed with a shout. अब अचानक से एक जोर का आवाज आता है And the bridegroom returns और जो दूल्हा है वो वापस आता है with his party. अपने लोगों के This साथ. is especially after midnight announcing the arrival of the groom. खास रूप से मध्य रात के बाद और ये जो दूल्हे के आने की घोषणा की जाती है. Just exactly in Matthew 25 verses 1 to 13, the parable of the wise and foolish virgins. जो मत्ती 25 1 से 13 में जैसे लिखा गया है जो उदाहरण है मूर्ख और समझदार कुंवारियों का. So there is a bridal chamber called Hooper made for both of them. अब ये जो एक शादी का कमरा बनाया जाता है हूपर नाम का दुल्हन और दूल्हे के लिए. The bride is veiled, her face no one can see, she is covered up. तो अब जो दुल्हन को है उसके मुंह पर पर्दा होता है ताकि कोई भी उसे चेहरे पर पर्दा होता है ताकि कोई भी उसे देख ना सके. They both enter the chamber for the first time. और दोनों जो है दूल्हा और दुल्हन उस कमरे में पहली बार प्रवेश करते हैं. And they have the first intimacy of physical relationship. और पहली बार वे दोनों शारीरिक रूप से एक हो जाते हैं, संबंध हो जाता है The उनका. marriage is established. और जो शादी है वो स्थापित हो जाती They है. both come out, announce and declare to everybody. और फिर ये दोनों बाहर आते हैं और सबको घोषणा करते हैं, ये बात को ऐलान करते हैं. And there's a great celebration for 7 days festivities. और फिर 7 दिन तक ये जो जश्न शादी का जश्न मनाया जाता है. This is given in Judges 14:10 and Matthew 22. ये बात जो है वो न्यायों का 14 अध्याय 10 वचन में और मती में भी लिखा गया है. 7 days celebration. 7 दिन तक इस बात का जश्न मनाया So जाता when we है. go to heaven, we also have a big party where the daddy will throw a big party for his bride and for the bride's gang. तो जब हम भी स्वर्ग में जाएंगे वैसे यीशु परमेश्वर पिता जो है वो ऐसे बहुत ही बड़ा जश्न हमारे लिए रखेगा. Now we see Apostle Paul over here. तो जो पौलुस है He says that a marriage is so very important
that a man and woman come together and they become one flesh. Genesis 2:24. अब जो पौलुस है वो कहता है कि शादी का जो बंधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो दूल्हा दुल्हन एक बन जाते हैं, शारीरिक रूप से भी एक बन जाते हैं, जैसे उत्पत्ति में लिखा गया है। उत्पत्ति के 2:24. उत्पत्ति के 2:24 में लिखा गया Now है। Paul speaks in Ephesians 5 verse 25 to 27. अब पौलुस जो है वो एफिसियों के 5वें अध्याय 25 से 27 वचन में, And here the emphasis is given on the verse 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. अब जो 5वें अध्याय जो 26 वचन में लिखा गया है, ताकि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे, जिसमें न कोई कलंक, न झुर्री और न कोई दोष हो, किंतु वह पवित्र और निर्दोष हो। It begins with husband and wife, but he's saying just as Christ also loved the church. अब ये जो वचन है वो पति और पत्नी से शुरुआत होते हैं इस वचन की, और कलीसिया, और जो यीशु मसीह और कलीसिया, इस बात पर उसका अंत होता है, ये वचन का अंत। So beloved, we need to wash and cleanse ourselves every day with the blood of Jesus. तो इसी रूप से हमें रोज अपने आप को यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करना चाहिए, खुद Be को filled with His Holy Spirit every day. उसकी पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए। Study, meditate, obey His word day and night. उसके वचन का ध्यान अध्ययन करना चाहिए और उसके वचन का पालन करना चाहिए रोज। And one thing I want to tell you, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, anticipate, expect, आप बहुत ही अपेक्षा रखो, आप अपेक्षा आशा रखो that today will be the day of rapture. कि आज स्वर्ग ग्रहण का दिन Maybe हो now. सकता है, या फिर अभी। This is what Charles Spurgeon did in the past, beloved. यही बात जो चार्ल्स स्पर्जन थे वो करते थे पहले। He would tell his wife, "Don't worry about me. I might be raptured." वो कहते थे कि अपनी पत्नी से कहते थे कि आप मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरा स्वर्ग रोहन कभी भी हो And सकता he है। lived wonderful life. He was called the prince of all the preachers. और उसने बहुत ही खुशहालकाई और स्वस्थ जीवन जिया, और उन्हें ये शीर्षक दिया था कि जो प्रचारक है उनका राजकुमार। Hallelujah. हालेलुया। Now let's come over here. The main important thing which every man, every servant of God will talk about rapture. 1 Thessalonians 4:13 to 17. अब हम इस बात पे आएंगे जो हर एक परमेश्वर का जो व्यक्ति है वो इस बारे में कहता है। पहले थिस्सलुनीका का 4 अध्याय 4 अध्याय 13 से 17. 4 अध्याय 13 से 17। The beloved Apostle Paul was for 4 weeks in the city of Thessalonica. अब जो पौलुस थे वो 4 हफ्तों के लिए थिस्सलुनीका इस जगह पे थे। So when he preached about the rapture, और जब उन्होंने जो स्वर्ग रोहन इस बात का प्रचार किया, so the people got very excited. तो जो लोग हैं वो बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही खुश हो गए, And they expected the dead to rise there and then. और उन्होंने ये बात की अपेक्षा की कि जो मरे हुए हैं वो तभी के तभी जिलाए जाएं। So in 1 Thessalonians 4:13, Paul encouraged them, "But we don't want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, so that you don't grieve like the rest who have no hope." अब पहले थिस्सलुनीयों के 4 अध्याय 13 वचन में कहते हैं, जो पौलुस उनसे कहता है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सो गए हैं अनजान रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरे के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। Verse 16 says, "For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the chief angel, and with God's shofar. The dead in Christ will rise first." अब 16 वचन में ये बात कही गई कि प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ऊंची आवाज में दिया गया आदेश और प्रधान दूत की आवाज सुनाई देगी, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। And in verse 26, "Then we alive or left will be caught up together with them in the air, so we will be with the Lord." अब 17 वचन में ये बात कहते हैं कि
तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, इस प्रकार हम प्रभु के साथ सदा रहेंगे। Beloved, the people in Thessaloniki were very excited and their faith shot very high. प्रिय लोग, जो थिस्सलुनीके के लोग थे वो बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही अपेक्षा करने लगे और उनका जो विश्वास है वो बहुत ही बढ़ गया। So we should keep our faith alive. तो हमने भी हमारा जो विश्वास है उसे जीवित रखना चाहिए। Because this word rapomia or hapazo or rapture, it is not something of the new covenant or something new idea of God. ये जो शब्द है रप्योमियर या हपाजो या स्वर्गरोहण, ये कोई नया चीज नहीं है, पर यीशु मसीह का कोई नया चीज नहीं है। It is mentioned in the oldest book of the Bible, the book of Job. ये जो बात है वो यीशु मसीह के सबसे पुराने जो पवित्र शास्त्र के सबसे पुराने किताब में लिखा गया है, अय्यूब। It says in Job 19 verse 25 to 27. जो अय्यूब के 19 अध्याय है 25 से 26 वचन में लिखा गया है। We can read that. ये अभी हम पढ़ेंगे। Job 19 verse 25 to 27 is very wonderful, very wonderful. 25 से लेके 27 वचन में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और न कोई दूसरा। यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। You know the story of Job, what he suffered. We can talk for hours together. अब हम अय्यूब की किताब को जानते हैं, जो उसकी परेशानी उसने देखी, हम इसके बारे में घंटों घंटों बात कर सकते हैं। The fool of hell was permitted to do anything exception of to touch his soul. अब जो पूरा नर्क है वो उसके खिलाफ कुछ भी कर सकता था और केवल एक बात को छोड़कर कि उसके प्राण को हाथ नहीं लगा सकता था। Job was like a king, but he was shattered, broken, betrayed, and just left to die dead. अय्यूब राजा के समान था, पर वो पूरा ही तरीके से टूट गया था, वो चूर चूर हो गया था और वो मरने के लिए से छोड़ दिया गया था। But I believe, beloved, how could Job had this much of faith to face all this thing? This is one of the secret, I believe. पर मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ प्रियो, कि कैसे अय्यूब इतना हो जाने के बावजूद ही एक जो राज की बात थी उस पर जो था वो जिंदा था। He says, my Redeemer lives and shall stand at last on the earth, and after my skin is destroyed, as you know, in that flesh I shall see him again. तो ये जो बात कहते हैं कि मेरा जो उद्धार करता है वो जीवित है और वो मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, मैं और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी, वो कहता है। Verse 27 he says, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold not another, how my heart yearns within me. तो जो 27 वचन में वो कहता है, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और न कोई दूसरा, मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। His heart longed to see the Redeemer, beloved. उसका जो दिल है वो चाहता था पर यीशु मसीह को देखने के लिए, उद्धारकर्ता को देखने के लिए। That is why all the catastrophe and everything which came against him from the pit of hell could not touch him. इसी वजह से जो भी बातें, इतनी जो बुरी बातें जो नर्क के अंदर से आई, वो भी उसे हिला नहीं सकती थी। Hallelujah. हालेलुया। The time is constraining. We can talk a lot about it. अब जो समय है वो बहुत ही कम है, हम बहुत बात कर सकते हैं इस बारे में। So we will stop over here. अब हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे। There are other 7 type of raptures. और 7 तरीके के अलग स्वर्गरोहण है। We'll share it next time. अगली बार हम इस बारे में बात करेंगे। Father, we bless your people as they hear this. पिता, मैं चाहता हूँ कि आपके लोगों पर आशीष हो, जैसे वो इस वचन को सुन रहे हैं। Sweet Holy Spirit, पवित्र आत्मा, bless them
उन्हें आशीषित Lead कीजिए, them. उन्हें उनका मार्गदर्शन कीजिए, Guide them उन्हें मार्गदर्शन in कीजिए sonship, पुत्रता में, in friendship with Yeshua, यीशु मसीह के साथ दोस्ती करने friendship में, with you, Holy Spirit, पवित्र आत्मा आपसे दोस्ती करने and the में, deep revelation और जो छुपी जो राज की बातें that हैं they are blessed, कि वे बहुत ही आशीषित है anointed, और वे Abhishek, अभिषेक किए गए हैं and they are glorious bride of Yeshua. और वो महिमापूर्ण दुल्हन है यीशु मसीह की। We bless the Father, Son, the Holy Spirit, and we bless the blessing upon all of His saints of the Father, Son, the Holy Spirit, and we seal with the blood of Yeshua in Jesus' name. हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आशीष तुम पर सब पर देते हैं For Yeshua के लोग, और यीशु का लहू तुम पर देते हैं। Amen. आमीन।